दृश्यलाई जब सोच्छु रक्तमै प्रभुलाई म देख्छु उसको दृश्यलाई जब सोच्छु रक्तमै प्रभुलाई म महानुदार दियो मलाई बहुमूल्य रगत बहार महानुदार दियो मलाई बहुमूल्य रगत बहार मृत्युपछि कहाँ जाने यही चिन्ताले नबिन्दाथे मृत्युपछि कहाँ जाने यही चिन्ताले नबिन्दाथे तारा मलाई कार्य देखा किसी बनायो जीवन माया तारा मलाई कार्य देखा किसी बनायो जीवन माया मेरो हृदयको उपासना चढाउँदै गर्छु वन्दना महानुदार दियो मलाई बहुमूल्य रगत बहार महानुदार दियो मलाई बहुमूल्य रगत बहार मेरो आत्माको ध्यान गर्ने कोही छ भनी मैले खोजे मेरो आत्माको ध्यान गर्ने कोही छ भनी मैले खोजे मेरो प्राणको वास्ता गर्ने तिमी नै मात्र पाए मैले मेरो प्राणको वास्ता गर्ने तिमी नै मात्र पाए मैले मेरो हृदयको उपासना चढाउँदै गर्छु वन्दना महानुदार दियो मलाई बहुमूल्य रगत बहार महानुदार दियो मलाई बहुमूल्य रगत बहार तिम्रो पवित्र प्रेमलाई सधैँ सम्झन्छु मलाई तिम्रो पवित्र प्रेमलाई सधैँ सम्झन्छु मलाई कस्तो माया कस्तो। हम एक भाग पढ़ेंगे मेष के संबंध में। पहला कोरिन्थी की किताब 11 अध्याय, 1 Corinthians chapter 11। हम बारी बारी करके 17 पद से 34 पद तक हम पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ना ताकि आज आप इसको पढ़ते पढ़ते आज इस मेष का जो आज महानता है, मेष की जो मूल्यता है, इसको आप जान सकेंगे और जो भी बातें प्रभु हमको बताना चाहेंगे वो हम बाद में देखेंगे। इसलिए अच्छी तरह ध्यान से अपने भाग को आपको पढ़ना है। पहला कोरिन्थी 11 अध्याय 17 से हम पढ़ रहे हैं। बारी बारी करके हम पढ़ेंगे। 17 पद में पढ़ा हूँ। नाउ इन दिस दैट आई डिक्लेयर unto you, I praise you not, that ye come together not for the better, but for the worse। 18 पद। For first of all, when ye come together in the church, I hear that there be divisions among you, and I partly believe it. For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made
manifest among you. 20 पद. When ye come together, therefore, into one place, this is not to eat the Lord's supper. For in eating, everyone taketh before other his own supper. One is hungry, and another is drunken. 22 पद. What? Have you not houses to eat and to drink in? Or despise ye the church of God, and shame them that have not? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I praise you not. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. 24 pad. And when he had given thanks, and brake it, and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye, as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, ye receive the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. 28 pad. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. 30 pad. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we should not be judged. 32 pad. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that ye should not be condemned with the world. Wherefore, my brethren, when ye come together to eat, tarry one for another. 34 pad. And if any man hunger, let him eat at home, when ye come not together unto condemnation, and the rest will I set in order when I come. आमीन। प्रभु से वचन भाग पढ़ाई पर हमको आशीष दे, हमसे बात करें। छोटी सी प्रार्थना हम वचन की अगुवाई के लिए हम करेंगे। अभी हमने जो भाग पढ़ा था, इसमें किस प्रकार से ये मेज़ का स्थापना किया गया और किस उद्देश्य से ये मेज़ का स्थापना किया गया, ये बात हमको पढ़ने को मिला था। और किस प्रकार से इसमें से हम भाग ले, ये भी यहाँ पर बताया गया है। इन बातों को हम छोटकरी में देखेंगे। 23 पद, 11 अध्याय का 23 पद पढ़ दीजिए तो। यह बात मुझे प्रभु से पहुँची, मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी। प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ाया गया, रोटी ली। यहाँ पर एक बात लिखा गया है, ये मेज़ की स्थापना का जो समय है, किस समय में ये मेज़ का स्थापना किया गया, अर्थात प्रभु ने ये मेज़ का शुरुआत किया। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़ाया गया था, प्रभु यीशु मसीह के पकड़ाए जाने की जो रात था, उस रात में प्रभु ने ये मेज़ की स्थापना किया। इस बात को हम लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय में ये विवरण हम पाते हैं। वहाँ पर कैसे प्रभु ने उस रात में आज ये मेज़ का शुरुआत किया। इसी प्रकार से आज यही बात को लेकर हमको भी ये मेज़ का आज शुरुआत करना है। इन बातों को हम थोड़ी देर हम देखें, इसलिए आइए सब मिलकर हम इसको देखते जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय, लुक चैप्टर 22। यहाँ पर हम, क्योंकि ये बहुत लंबा अध्याय है, इसको हम छोटकरी में बताएंगे। 1 से लेकर 6 पद तक प्रभु यीशु मसीह का पकड़ाया जाने का जो षड्यंत्र था, कंस्पिरेसी अबाउट हिज बिट्रेयल, यहाँ पर इस बात को हम क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति आया, क्योंकि ये लोग का मन में यही बात था। यहाँ पर लिखा गया है, मुख्य पुजारी और शास्त्रियों इनके द्वारा आज प्रभु को क्या हुआ था, पकड़वाने के लिए ये लोग सोच रहे थे, लेकिन कैसे पकड़े ये बात इनको मालूम नहीं था। उस समय में एक व्यक्ति वहाँ पर आया और उस व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। 22 अध्याय का 3 पद पढ़ दीजिए तो। यहूदा में समाया, इस्करियोती कहलाता है, और 12 चेलों में से एक यहूदा इस्करियोती नाम के व्यक्ति के अंदर में शैतान, यहाँ पर क्या लिखा है, एंटर्ड शैतान इनटू जुदास, शैतान प्रवेश किया उसके हृदय में। वो क्या किया, प्रवेश करने की बात यहाँ पर लिखा गया है, जिसके कारण से अब वो क्या सोचने लगा। यहाँ पर 4 पद में ये बात बताया गया है, पढ़ दीजिए तो। प्रधान याजकों
हाउ ही माइट बिट्रे हिम अनटू डेथ। यहाँ पकड़ने की षड्यंत्र अब यहाँ पर शुरू हुआ। शास्त्रियों फरीसियों ने ऐसी बात सोच रहा था, हाँ हम प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाएंगे, उसको मारेंगे, ये बात वे लोग सोच रहे थे। और उनकी बातों को जानकर अब शैतान क्या करता है, यहूदा में प्रवेश करके अब शास्त्रियों के पास वो ले जाता है, वह आज फरीसियों के पास ले जाता है, मुख्य पुजारी के पास ले जाता है। और वे लोग क्या करते हैं, उसको पैसा देने का पैसा देने को वे लोग वाचा करते हैं और इसके साथ वह प्रतिज्ञा करता है। और 6 पद में आकर ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। पढ़ दीजिए तो। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ भीड़ न हो तो उसने उनके हाथ पकड़वा दे। उसने उस समय पकड़वा दे। इस प्रकार से पकड़ाने की बात अब यहाँ पर ये यहूदा इस्करियोती क्या करने लगा, सोचने लगा। और यही रात के समय की बात बताता है जिस समय में प्रभु ने मेज का स्थापना किया। अब 7 पद से लेकर 18 पद तक यहाँ पर एक भोज मनाया जा रहा है, एक आचार मनाया जा रहा है, पर्व मनाया जा रहा है जिसको अनलीवन ब्रेड अखमीरी रोटी का पर्व बोल के कहा जाता है। जिसमें क्या होता है, यहाँ पर 7 पद में ये बात लिखा गया है। पढ़ दीजिए तो। अखमीरी रोटी का पूर्व का दिन आया, फसह का मेमना बलि करना अवश्य था। ये पर्व जो है इसको अखमीरी रोटी का पर्व कहा जाता है। जो इज़राइल उस समय में, जैसे हमने वचन में सुना था, इज़राइल मिस्र देश में थे, मिस्र देश से उनको छुटकारा मिलना था दासत्व से, प्रभु ने उसको प्रतिज्ञा दिया था। लेकिन कैसे आज वो लोग को मिस्र देश से छुटकारा मिलेगा, ये बात प्रभु ने उनको बताया था। उनको बताया गया था कि एक मेमना वहाँ पर होना चाहिए और ये मेमना मार दिया जाना चाहिए, इसको मारना चाहिए। इसका लहू जो है, अब वो लहू आज निकाल कर ये दरवाजे की जो चौखट है उसमें लगा देना चाहिए। और जब मृत्यु का दूत वहाँ से आएगा और आते समय में जब वो लहू को देखेगा तो अंदर में जो भी व्यक्ति है जिसने वो जो लहू लगाया है, वो लहू लगाने वाला जो घर है, वो घर में आज वो मृत्यु का दूत प्रवेश नहीं करेगा, पार होकर जाएगा और वहाँ के लोग सब बचेंगे, छुटकारा वे लोग पाएंगे। ये बात आज परमेश्वर ने उनको आज ये बात क्या किया था, बताया गया। इसलिए यहाँ पर ये अंग्रेजी में ये जो पर्व है इसको पास ओवर कहता है। पास ओवर का मतलब होता है पार होकर जाना, पार होकर जाना। वहाँ पर एक यहाँ पर दरवाज़ा है, ये दरवाजे में लहू जब लगाया गया था, उधर पर मान लीजिए आप लोग हैं, आप लोग अंदर में, आप लोग इजरायली वहाँ पर, हम लोग का बाहर में आप लोग वहाँ पर है। यहाँ पर जब दरवाज़ा लगाया जाएगा, एक घोषणा वहाँ पर हुआ था, जिस किसी के पास वह मेमना नहीं मारा जाएगा उसके घर में क्या आएगा, मृत्यु आएगा। प्रत्येक पहलौटा जो है वह आज मार दिया जाएगा बोल के इस प्रकार से कहा गया। इसलिए इजरायलियों ने क्या किया, आज वो दरवाजे में चौखट में आज वो लहू लगाकर उन अंदर में वो लोग रहे थे, ये मेमना को मारकर। इसलिए अखमीरी रोटी का पर्व इसी प्रकार से आज मनाया जाता है। उसमें क्या करना चाहिए, एक मेमना का बलिदान आज क्या किया जाना चाहिए, आज मार दिया जाना चाहिए। ये बात यहाँ पर लिखा गया, हम क्या कर सकते हैं, बात है। और प्रभु ने भी ये पर्व जो है, ये पर्व मनाने के लिए आज परमेश्वर ने कहा था, अब तुम्हारे पुस्ता पुस्ता में आज ये मेमना को आज प्रत्येक साल में आज मारकर आज ये पर्व को मनाया जाना चाहिए। इस प्रकार से इजराइल के लिए एक विधि वहाँ पर आज बनाया गया था। और ये विधि को पूरा करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने भी, और वो क्या करता है, वो मेमना को लेकर वे लोग क्या करते हैं, अब उसको मारकर अब वो अखमीरी रोटी का ये पर्व जो है, चाण है, वे लोग मनाते हैं। यहाँ पर किस किस ने मनाया, कैसे मनाया, ये बात यहाँ पर हम 22 अध्याय का 7 पद से लेकर 18 पद तक आज यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मालूम कर सकते। यानी किस प्रकार से पर्व मनाया जाता है, ये बात यहाँ पर लिखा गया, हम पाते हैं। उसके बाद 7 अध्याय 22 अध्याय का 19 और 20 पद में, 19-20 पद में यहाँ पर एक पर्व, अब ये जो पासोवर का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व मनाए जाने के बाद अब प्रभु क्या करता है, ये प्रभु भोज का स्थापना करता है। इसलिए यहाँ पर मेरा बाइबल में लॉर्ड्स सपर इंस्टीट्यूटेड, प्रभु भोज का शुरू होना बोल के यहाँ पर स्थापना किया जाना बोल के यहाँ पर ये हेडिंग लगाया गया। और 19 और 20 पद में जो बात हमने पढ़ा था, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 23-24 पद में, यही बात यहाँ पर हम पाते हैं 19 और 20 पद में। पढ़ दीजिए। फिर उसने रोटी ली रोटी ली और धन्यवाद करके
तोड़ी धन्यवाद करके तोड़ी, और उनको यह कहते हुए दी, ये कहते हुए दिया, यह मेरी देह है ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती जो है। तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया मेरे करो। स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, कटोरा यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरा उस लहू में जो यह कचौरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नहीं बाचा है। नहीं बाचा है। इस प्रकार से प्रभु ने आज ये भोज को शुरू किया और इस भोज को यहाँ पर टेबल करके कहा गया है, क्योंकि उस समय में प्रभु ने अब मेरा पकड़ने का समय आ गया बोल के प्रभु वहाँ पर डिक्लेयर करता है चेलों के बीच में। 21 पर देखो मेरे पकड़ाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। मेज पर है, वहाँ मेज का बात वहाँ पर है। इसलिए प्रभु भोज जो है इसको क्या भी कहा जाता है, लॉर्ड्स टेबल भी कहा जाता है। और इस टेबल में दो बात हम पाते हैं, एक क्या पाते हैं, रोटी पाते हैं, और दूसरा कचौड़ा बोल के यहाँ पर लिखा गया है। और कचौड़ा में कुछ रस भरा हुआ होता है, उसको हम क्या करते हैं, लेते हैं। इसलिए यहाँ पर ये कचौड़ा यहाँ पर तैयार किया गया है। अब ये आपको देंगे गरार में। सबसे पहली बार ये सेवा अब क्या होगा, शुरू होगा। और आज से लेकर अब प्रत्येक हफ्ता, क्योंकि ये बात को हमको करने के लिए प्रभु ने इस प्रकार से कहा है कि ये प्रभु भोज का जो आज संगति है, ये प्रत्येक रविवार के समय में क्या करना है, इसको करना है बोल के प्रेरित काम 20 अध्याय के 7 पद में वहाँ पर लिखा गया। हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से प्रभु ने आज रोटी लिया और कचौरा लिया और उसको चेलों को देकर उन्होंने ये आज प्रभु भोज का सेवा शुरू करते हुए इसमें उन्होंने क्या किया, भाग लिया। तो क्यों प्रभु ने उस समय में, उस रात में, हाँ, जो अख़मीरी रोटी का पर्व के समय में जब उसको आज इस प्रकार से पकड़वाया जा रहा था, उस समय में क्यों प्रभु ने ये मेज की स्थापना की, यहाँ पर इसके उद्देश्य क्या किया गया है, बताया गया है। यहाँ पर 19 पद में ये बात लिखा गया, फिर पढ़ दीजिए तो। रोटी लिए, धन्यवाद करके तोड़ी, यह कहते हुए दिया, यह मेरी देह है तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। फिर पढ़ दीजिए तो पहला कुरिन्थी किताब 11 अध्याय 23 और 24 पद में यही बात लिखा गया, हम पाते हैं 24 और 25 पद में। पढ़ दीजिए। धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। 25 पर, बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो मेरी स्मरण के लिए यही किया, इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, मेरे बोल के यहाँ पर लिखा गया। प्रभु अपने आप ये बात उसने शुरू करते हुए कहता है, मेरी स्मरण के लिए, मेरी देह को स्मरण करते हुए, मेरी आज इस प्रकार से लहू को स्मरण करते हुए तुमको आज इसमें से क्या करना है, भाग लेना है। इसलिए ये बात हमको मालूम होना है। इसलिए उसके देह का जो बात है, देह का जो आज मरने की जो उद्देश्य है, उसका लहू बहाने का जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य को हमको मालूम होना चाहिए। हमारे जो इस बात का अनुभव आज हमको क्या करना चाहिए, करना चाहिए। तभी आज इस बात की स्मरण आज हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। नहीं से तो ये बात हमारे जीवन में हुआ ही नहीं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का देह ने आज हमारे लिए क्या किया, प्रभु का लहू ने आज हमारे लिए क्या किया, ये बात को हमको स्मरण ही, याद ही नहीं है, हमारे जीवन में अनुभव ही नहीं किया है, तो हम ये बात को क्या नहीं कर सकते हैं, स्मरण नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु ने आज क्या किया था, क्यों इस प्रकार से उसने कहा, क्योंकि वह अख़मीरी रोटी के समय में एक मेमना का मारा जाना वहाँ पर आवश्यक था बोल के जो बात हमने, अब फिर हम आएंगे लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय में। ये मेज का जो उद्देश्य प्रभु की देह को, उसकी लहू को स्मरण करने की बात है। इसलिए शुरू से हम लोग ये उद्देश्य को याद करते हुए अब इसमें से भाग लेने हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे, और उद्देश्य को हम कायम हम रखेंगे और किस प्रकार से इसको हमको लेना है, ये बात हम क्या करेंगे, जानेंगे। 22 अध्याय के 7 पद में फिर पढ़ दीजिए तो। हाँ, पर्व का दिन, फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। पासोवर का जो लैम है, मेमना है, हाँ, पाठो जो पनि छ,
ये क्या होना था, इसको मर जाना। और ये पासओवर कौन था, ये बात हम यहाँ पर पहला कोरिन्थी 5 अध्याय का 8 पद में ये बात हम यहाँ पर पाते हैं। पहले पढ़ दीजिए तो पहला कोरिन्थी किताब 5 अध्याय का 8 पद। इसलिए आओ हम उत्साह में आनंद मनाएं। 7 पद में पढ़ दीजिए। पुराना खमीर निकाल कर हाँ। अपने आप को शुद्ध करो कि हाँ। नया मुदा हुआ आटा बन जाओ, हाँ। ताकि तुम अख्मीरी हो, हाँ। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है, बलिदान हुआ है। क्राइस्ट आवर पैसओवर इज सैक्रिफाइस फॉर अस। ये पैसओवर का जो लैम्प था, ये पैसओवर का लैम्प कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह अपने आप था। इसलिए प्रभु ने जब वो लैम्प को ले अपने चेलों के साथ आज उन्होंने क्या किया था, वो लैम्प को लेकर आज इसको मारा था और लहू उसको चौखट में उन लोगों ने क्या किया था, लगाया था। ये काम ये पर्व को मनाने के लिए इस प्रकार से वो मेमना को जब मारा जा रहा था, उस समय में प्रभु ने मालूम किया कि ये जो मेमना है, ये मेमना तो कौन है? वो तो मैं ही। इसलिए पासओवर जो है आज परमेश्वर ने क्या कहा था इनके बारे में, यहाँ पर हम प्रस्थान की किताब, निर्गमन की किताब में एक्सोडस में उसका 12 अध्याय में हम ये बात यहाँ पर क्या करते हैं, पाते हैं। ये पासओवर को किस प्रकार से आज इसको लेना चाहिए, यहाँ पर लिखा गया हम पाते हैं। 12 अध्याय का 14 पद पढ़ दीजिए तो। और वह चीज तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। स्मरण दिने, यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा गया है, दिस डे शैल बी अनटू यू फॉर अ मेमोरियल, समझना के लिए, स्मरण के लिए यह चाड़ उनको क्या करना था, उस समय उनको मनाना था। इसलिए प्रभु आज वो बात को स्मरण करते हुए और यहाँ पर प्रभु अपने आप अब प्रकट करता है, ये जो मेमना जो आज मारा जा रहा है, ये मेमना तो मैं अपने आप, क्योंकि परमेश्वर के वचन में आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के सब पापों को क्या करता है, उठा कर ले जाता है। ये बात तो आज हमको मालूम करना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में मेमना बनकर वो आया और मेमना बनकर उसने अपना प्राण कलवरी क्रूस पर दिया और कलवरी क्रूस में उसने अपना प्राण देने के कारण, देने के समय में हम वहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से हमने सब पापों को अपने ऊपर उन्होंने क्या किया था, लिया था, अपने ऊपर उठाया था। इसलिए कहते हैं कि यह संसार का पाप उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना, हमारा परमेश्वर इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मेमना बनकर इस संसार में आया, हमारे सब पापों को अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पर आज चढ़ गया, बलिदान हुआ, उसके बलिदान के लहू के द्वारा वो हमारे सब पापों के दंड से हमको छुटकारा देकर आज हमको हमारे पाप का क्षमा देकर हमारे पाप को शुद्ध वो करता है और हमके पवित्र परमेश्वर के जन्म आज वो हमको क्या करता है, बनाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब वो मेमना को लेकर वे लोग बैठे थे वहाँ पर, हैं कहाँ पर बैठे थे, यहाँ पर आइए तो हम पढ़ेंगे और इस बात से हम कुछ बातें हम देखेंगे। हमको भी ऐसा ही आज ये मेज़ में रहते हुए इस अनुभव में आज हमको क्या करना है, आना है। यहाँ पर प्रभु ने ये तैयार करने के लिए अपने चेलों को यहाँ पर भेज लिया। मैं पढ़ते जाऊँगा और कुछ कौन सा भाग पढ़ना है वो हम आज पढ़ेंगे। 22 अध्याय का यहाँ पर अब 8 पद में हम पाते हैं, प्रभु अपने चेलों से कहता है कि आज ये फसह को तुम लोग क्या करो, तैयार करो, अर्थात मेमना को तुम लोग तैयार करो। और वे लोग तैयार करने जाने के समय में प्रभु ने उनको कहाँ पर आज उनको ये क्या करना पड़ेगा, आज ये फसह को तैयार करना पड़ेगा। 10 पद में वहाँ पर लिखा गया है, फॉलो हिम इनटू द हाउस, एक घर में तुम लोग प्रवेश करेंगे और उस घर में तुमको एक कोठरी दिखाया जाएगा। 12 पद में एक कोठरी कैसा है, लार्ज अपर रूम फर्निश, तैयार किया हुआ एक कोठरी वहाँ पर हम क्या करते हैं, पाते हैं, देयर मेक रेडी, वहाँ पर आज उसको करना था। इसलिए एक घर वहाँ पर था, ये घर पहले तैयार होना है, तभी आज क्या हो सकता है, ये मेमना को वहाँ पर मार कर आज उसको खाते हुए आज स्मरण किया जाता है। इसलिए प्रभु ने यहाँ पर हम नीति वचन में ये बात हम पाते हैं। नीति वचन के 9 पद में यहाँ पर किस प्रकार से एक घर में ये बात को क्या करना है, लेना है, बल्कि यहाँ पर लिखा गया हम पाते हैं। नीति वचन का किताब 9 अध्याय का 1 पद में, विजडम हैड बिल्डेड हर हाउस, सबसे पहले यहाँ बुद्धि ने एक घर बनाया बोल के लिए, एक घर यहाँ पर बनाया गया है। ये घर क्या है, ये परमेश्वर का मंडली है, परमेश्वर का मंडली, परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर का कलीसिया बोल के हम पहला तिमोथी किताब 3 अध्याय के 15 पद में पाते हैं। यहाँ पर आज मंडली क्या हुआ, यहाँ पर तैयार हुआ,
सबसे पहले एक घर वहाँ पर तैयार हुआ। उसके बाद 2 पद में, आज 2 पद के अंतिम भाग में लिखा गया है, शी हैथ ऑल्सो फर्निश अ टेबल। और वो घर जब बन गया, घर बनने के बाद वहाँ पर आज क्या किया गया, आज वहाँ पर मेज तैयार किया गया, बल्कि यहाँ पर लिखा गया हम पाते हैं। इसी प्रकार से हमारे गरार मंदिर के लिए भी पहले ये घर बन गया, पहले ये घर यहाँ पर बन गया, और ये घर में अब क्या किया गया है, ये मेज यहाँ पर तैयार किया गया। इस बात को आज हमको जान, इस प्रकार से घर में यहाँ पर पहले ये फसह का पर्व भी इसी प्रकार से मनाया जाता था। आइए तो यहाँ पर हम निर्गमन की किताब में ये बात हम पाते हैं। निर्गमन का 12 अध्याय का 46 पद 12:46 इन वन हाउस शैल इट बी ईटन। वह जो पैसोवर है कहाँ पर मनाया जाना था, एक घर में आज क्या किया जाना था, मनाया जाना था, है? इसलिए घर में मनाया जाता है, एक घर वहाँ पर होना चाहिए। मेज की स्थापना, मेज के आज खाने की जो बात है और स्मरण करने की जो बात है, एक घर में वह होना चाहिए। घर क्या है, परमेश्वर का मंडली है। इसलिए परमेश्वर की मंडली का आज सदस्य बनकर, उसका भाग बनकर ही आज हम इसमें से क्या कर सकते हैं, हम भाग ले सकते। इसलिए हम प्रेरित के काम, प्रेरित का 2 अध्याय में ये बात हम पाते हैं। प्रेरित का 2 अध्याय का 41-42 पद में ये बात लिखा गया है। आज किस प्रकार से वे लोग मेज में भाग लेने का सबसे पहले मंडली जो वहाँ पर तैयार हुआ था, उन्हें इस प्रकार से किया। प्रतिशत 2 अध्याय का 41 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, आज जितनों को उधार मिला वे लोग ने क्या किया, बपतिस्मा लिया और परमेश्वर की मंडली में आज उनको लगाया गया। और 42 पद में आकर हम देखते हैं, और वे अब रोटी तोड़ने की आज सेवा में वे लोग निरंतर बने रहे, बल्कि यहाँ पर लिखा गया हम पाते हैं। इसलिए आज मेज जो है, ये जब मंडली तैयार होगा, मंडली का घर जब बनेगा, उसी समय में उसी जगह में ही केवल इस प्रकार से मेज का स्थापना वहाँ पर क्या किया जाता है, होता जाता है। और जब ये पैसोवर जो है, लैम्ब जो है, ये मारा जाता है और उसको जो कोई इसको खा नहीं सकते, यहाँ पर लिखा गया। आइए तो फिर निर्गमन की किताब 12 अध्याय का 45 पद में 45 में क्या लिखा है, पढ़ दीजिए तो। परदेशी और मजदूर उसमें से ना खाए। फॉरेनर्स जो विदेशी है, जो आज मंडली के अंग नहीं है, मंडली के सदस्य नहीं है, वो घर के आज सदस्य नहीं है, आज वो क्या नहीं कर सकते, आज इस मेज में से भाग नहीं ले सकते। फॉरेनर्स नहीं होना चाहिए। कौन होना चाहिए, कौन इसमें भाग ले सकते हैं, वो घर में जो घर का जो सदस्य है। इन बात को हम देखते जाएंगे। घर का जो सदस्य है वे लोग आज इसमें क्या कर सकेंगे, भाग ले सकते हैं। इसलिए हमको यहाँ पर हम अब आएंगे फिर लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय में। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय में अब ये घर में ये तैयार किया गया और वहाँ पर किसने भाग लिया, ये बात यहाँ पर लिखा गया हम पाते हैं। 22 अध्याय का अब 13 और 14 पद 13 और 14। उन्होंने जाकर जैसा कहा था वैसा ही पाया, अर्थात वो घर में वे लोग ने ऐसे ही पाया और वहाँ पर फसह उन्होंने तैयार किया। और 14 पर जब समय आया प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। इस प्रकार से उन्होंने निस्तार भोज आज मनाया था। वो पैसोवर का फीस्ट जो है उन्होंने इस प्रकार से क्या किया था, मनाया था। और उस समय में प्रभु ने क्या किया, जब वो मेमना को मार जा रहा था, उसका लहू लेकर जब वो डोर पोस्ट में लगाया जा रहा था, उस समय में प्रभु ने स्मरण किया, अरे ये जो मेमना जो अभी हमने मारा है, जिसको अब हम खा रहे हैं, ये तो मैं अपने आप हूँ, इसलिए आज मेरे लोग, अब मैं तो जा रहा हूँ, मुझको तो आप क्या करेंगे, मनुष्य आज पकड़ा ही देंगे, पकड़ा कर मुझको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मैं भी इस पासोवर लैम्ब की नहीं, आई विल बी किल्ड, मैं भी मर जाऊंगा। तो जब मैं मर जाऊंगा तो चेले मेरे मुझको नहीं वे लोग देखेंगे, नहीं देखने के कारण वे लोग अब क्या करेंगे, विलाप करेंगे, क्या करेंगे, वे लोग का जीवन ऐसा होगा। इसलिए मैं उनके लिए एक घर पहले तैयार करूंगा और घर तैयार करके उनको ये भोज स्थापना करके मैं उनको दिखाऊंगा कि जब कभी तुम आज इसमें से लोगे, ये टेबल में से भाग लोगे, तब तुम मुझको क्या कर सकोगे, स्मरण कर सकोगे। इस कारण प्रभु ने अपनी स्मरण, मेरे लोग भी आज मेरे स्मरण कर सके, इसके लिए प्रभु ने क्या किया था, ये भोज को उसने तैयार किया। इसलिए प्रभु ने ये फसह उन्होंने खत्म किया। ये फसह जो है, पैसोवर फीस्ट है, ये टेबल नहीं है,
ये बात को हमको मानना जानना चाहिए। हाँ, ये प्रभु ये जो निस्तार चाड का जो भोज है, निस्तार भोज आज प्रभु भोज नहीं है, लेकिन निस्तार भोज जिस प्रकार से आज मनाया जा रहा था उस प्रकार से आज मनाने के लिए प्रभु ने आज ये भोज को, आज प्रभु भोज को उसने किया था, तैयार किया। इसलिए इसमें बाद में हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। निस्तार भोज जो यहूदी लोग मनाते हैं, हाँ, वे लोग ये मनाने वाले जो है वे लोग आज इस प्रकार से मनाए, उन लोग ने प्रभु भोज में वे लोग भाग नहीं ले रहे हैं। ये बात हमको मालूम करना चाहिए। हाँ, ये निस्तार भोज दूसरा है, प्रभु भोज दूसरा है। लेकिन निस्तार भोज में जिस प्रकार से वह मेमना का स्मरण किया जाता है, उसी प्रकार से ये प्रभु भोज में भी एक मेमना का स्मरण किया जाता है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने आप है। इसलिए हमको ये भोज में आज प्रभु यीशु मसीह को हमको क्या करते रहना है, स्मरण करते रहना है। कहाँ पर रखकर? एक घर में रखकर। इसलिए घर के बारे में कुछ बात हम देखेंगे जिससे आज हमको अपने जीवन को जांचते हुए हम इसमें से क्या कर सकेंगे, हम भाग ले सकेंगे। इसलिए घर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आइए तो इसको हम कहाँ पर पढ़ते हैं, पहला तिमोथी की किताब 3 अध्याय का। इसलिए घर में, एक ही घर में इसको क्या करना चाहिए, मनाया जाना चाहिए, बल्कि यहाँ पर लिखा गया हम पाते हैं। पहला तिमोथी की किताब 3 अध्याय का 15 पद। पहला तिमोथी की किताब 3 अध्याय का 15 पद पढ़ दीजिए तो। यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घरानों में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, फिर पढ़े तो परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर के घरानों में, घराना लिखा है, ठीक है, अंग्रेजी में पढ़ दीजिए तो। ओरेकल 1 Timothy chapter 3 verse 15। हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर की घर में, बल्कि वहाँ पर लिखा गया है, और चर्च ऑफ द लिविंग गॉड, जीवित परमेश्वर की कलीसिया। इसलिए हमको प्रभु भोज कहाँ पर लेना है, हाँ, परमेश्वर के घर में होकर हमको क्या करना है, लेना है। घर में हमको आना है। इस घर को आज परमेश्वर के वचन में 3 प्रकार से आज बताया गया है। इफिसी की किताब में हम इस घर को 3 प्रकार से हम क्या करते हैं, देखते हैं, और उसी को याद करते हुए अब हमको क्या करना है, इसमें से हमको भाग लेना। सबसे पहले आज ये घर को एक बॉडी के रूप में आज क्या किया गया है, दिखाया गया है। जो बॉडी किसका है, जो शरीर किसका है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। या इसको हम इफिसी किताब 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं। इफिसी किताब 1 अध्याय, इफिसी किताब 1 अध्याय का 22 और 23 पद पढ़ दीजिए तो। और सब कुछ उसके पाँव तले कर दिया, हाँ, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर हाँ, कलीसिया को दे दिया। कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है। यह उसकी देह है। कलीसिया यह उसकी देह है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का क्या है, देह है। सो चर्च और द हाउस ऑफ गॉड इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। सबसे पहले ये बात हमको मालूम। दूसरा बात, प्रभु यीशु मसीह का जो मंडली है, कलीसिया को एक बिल्डिंग के रूप में आज इसको क्या किया गया है, बताया गया है। आइए इसको हम यहाँ पर इफिसी किताब 2 अध्याय में हम इस बात को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ये जो प्रभु, ये मंडली जो है, ये मंडली आज प्रभु यीशु मसीह का क्या है, आज इस प्रकार से बिल्डिंग है, बल्कि यहाँ पर लिखा गया। 19 पद में किस प्रकार से हम इस प्रकार ये परिवार में अर्थात एक घर में आएंगे, ये बात लिखा गया है। पढ़ दीजिए 19 पद। इसलिए तो वह विदेशी हाँ, और मुसाफिर नहीं रहे, हाँ, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वादेशी हाँ, और परमेश्वर के घराने के हम हो गए। अब ये घराने क्या है, यहाँ पर 21 पद में पढ़ दीजिए तो। जिसमें सारी रचना बोल के लिखा है, इंग्लिश में पढ़ दीजिए तो। बिल्डिंग बोल के यहाँ पर लिखा गया है। इसलिए परमेश्वर का घर सबसे पहले बॉडी है, अर्थात ख्रिस्त का, मसीह का जो देह है। दूसरा बात हम पाते हैं, परमेश्वर का जो मंडली है, ये मंडली क्या है, एक बिल्डिंग है, हाँ? एक बिल्डिंग की ना है, एक घर जो बनाया जाता है, बिल्डिंग की ना है। तीसरी बात हम पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जो आज मंडली है, ये मंडली को आज क्या कहा गया है, इसको आज एक ब्राइड करके कहा गया है, एक दुल्ही करके बताया गया हम पाते हैं। इसको हम इफिसी किताब 5 अध्याय में यहाँ पर 22 पद से लेकर पति पत्नी के बारे में यहाँ पर बताते हुए अब 31 पद में पढ़ दीजिए तो। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर हाँ, अपनी पत्नी से मिला रहेगा, हाँ, और वे दोनों
32 पद, यह भेद तो बड़ा है और मैं यह मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। कलीसिया के विषय में कहता हूँ। आज मसीह हमारा ब्राइड ग्रूम है, हमारा दुल्हा है, और हम उसके क्या है, ब्राइड है, हम दुल्हन है। ये 3 बात आज ये क्या के बारे में देख रहे थे, हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर के घर के बारे में, अर्थात मंडली के बारे में यहाँ पर बताया। इस मंडली में रहते हुए अब वहाँ पर क्या किया गया है, अब ये मेज को क्या किया गया है, तैयार किया गया है। और प्रभु अब हमको क्या करता है, वह हमको अब इनविटेशन देता है। फिर आइए तो नीति वचन का किताब 9 अध्याय में, नीति वचन की किताब 9 अध्याय में सबसे पहले घर बनाया गया, उसके बाद मेज वहाँ पर बिछाया गया, उसके बाद अब प्रभु कहता है अब आकर तुम इसमें से क्या करो, भाग लो। 9 अध्याय का 5 पद में, 9 अध्याय का 5 पद में, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाले मिलाए हुए दाखमधु को पियो। दाग मध्य को दूध पियो। है कितना अद्भुत बात है ना, अचंभे की बात यहाँ पर। सबसे पहले घर बनाया गया, बिल्डेड हाउस, उसके बाद फर्निश्ड टेबल, हाँ, मेज सजाया गया, उसके बाद प्रभु कहता है आओ मेज में से क्या करो, भाग लो। और मेज में क्या है, हाँ, वो रोटी और कचौरा। इसलिए प्रभु ये बात आज हमको, आज से गरार मंडली को प्रभु कहता है अब आओ, यहाँ पर तैयार हुआ है, गरार मंडली तैयार हो गया है, हाँ? गरार मंडली में अब मेज बिछाया गया है, अब में से भाग लेने के लिए तुम आओ। इसलिए हम दूसरे जगह से भी आए यहाँ पर भाग लेने के लिए, हाँ? और अब इसमें से क्या करेंगे, भाग लेंगे। लेकिन हमको मालूम होना चाहिए ये घर जो यहाँ पर बनाया गया है, ये घर क्या है, ये घर क्या है, एक बॉडी की नाई, एक शरीर की नाई। इसलिए एक शरीर की नाई आज हमको जीना है। एक शरीर में लोग किस प्रकार से जीते हैं, उस प्रकार से आज हमको क्या करना है, रहना है। आइए इसको हम पहला कोरिन्थी किताब 12 अध्याय का यहाँ पर 25 पद में एक दूसरे के बारे में यहाँ पर लिखा गया हम पाते हैं, और कुछ बातें हम वहाँ पर देखेंगे 12 अध्याय में। पहला कोरिन्थी किताब 12 अध्याय 25 पद नहीं पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ पर 3 बातें हम शरीर के बारे में हम देखेंगे। अब हमको छोटे करके करना है, इसलिए 3 बातें यहाँ पर हम देखते हैं। इसलिए ये बॉडी जो है, ये बॉडी आज रिलेशन को आज बताता है, हमारे एक दूसरे के साथ संबंध कैसा है, ये संबंध को याद करते हुए आज हमको इस मेज में से क्या करना चाहिए, भाग हमको लेना चाहिए। इस संबंध के बारे में 3 बातें यहाँ पर बताया गया। सबसे पहले ये शरीर का जो अंग है, यहाँ पर ये शरीर के बारे में हम देखेंगे। आइए तो पढ़िए तो 12 अध्याय का 12 पद। क्योंकि जिस प्रकार देह एक है, और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही सब मिलकर एक ही देह है। उसी प्रकार मसीह भी है। अर्थात मसीह का देह सब अंग मिलकर क्या बनाया हुआ क्या है, ये देह है। दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बॉडी। जैसे हाथ, पाँव, आँख, नाक, क्या क्या हुआ, ये सब अंग सब मिलकर इसको क्या कहता है, एक देह कहता है। इसलिए आज हम यहाँ पर जो भी प्रभु के जन हैं, हम प्रभु के जन, हम मसीह के शरीर हम आए, यही बात बताता है कि आज मसीह के सदस्य, मसीह के अंग हम लोग हैं। कोई आँखा है, कोई पाँव है, कोई आज कान है, तो कोई नाक है। तो इसलिए आज हमको 3 बातें हमको याद करना है, शरीर में होते हुए 3 बात की याद करना है। सबसे पहले हमारा पोजीशन, हमको प्रभु ने कहाँ पर रखा है, ये बात को आज हमको क्या करना चाहिए, मालूम हमको करना चाहिए। तो 12 अध्याय का 18 पद, 12 अध्याय का 18 पद। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। शरीर में प्रभु ने एक एक अंग को अपनी अपनी जगह में उसने क्या किया है, रखा है। इसलिए ये बात को शुरू से हमको यदि मालूम करेंगे तो हम लगातार ये मेज में से हम भाग लेते हम जा सकते। क्योंकि सबसे पहले हमको याद करना है, जब हम आज ये देह में भाग लेने के लिए आज हमको एक घर में रहना है, और ये घर एक शरीर को बताता है, जिस शरीर का हम अंग है, जहाँ पर प्रभु ने आज हमको एक अंग के रूप में कहाँ पर रखा है, इन बात को आज हमको क्या करना है, जानना है। यदि हम ये बात नहीं जानेंगे तो वहाँ पर गड़बड़ होगा। प्रभु ने किस जगह में आपको रखा है, उस जगह में आपको रहना चाहिए। हम दूसरी की जगह को यदि ढूंढेंगे तो कान कहेंगे मैं यहाँ पर आकर बैठूंगा, तो वो यहाँ पर आकर बैठकर सुनने का काम करने लगा तो क्या होगा, दूसरे के नज़र में एक तमाशा का कान क्या कर गया, बन जाएगा। आँख यहाँ पर यार
इसको यहीं पर रहना चाहिए। लेकिन आँख का जो कार्य हमको प्रभु ने जो दिया है, इस कार्य को हम दूसरी जगह में जाकर यहाँ पर से देखो बोलने से तो अब कहाँ होगा, हाँ इधर देखा, आगे भी देख नहीं सकेगा और रास्ता घुमा जाएगा। इस प्रकार से आज प्रभु ने हमको किस जगह पर रखा है, ये बात को सबसे पहले आज हमको क्या करना है, याद करना है। दूसरी बात, इस शरीर में अंग के रूप में रहते हुए हमारा काम क्या है, फंक्शन क्या है, ये बात को हमको क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। इसलिए यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर ये बता रहा है, हाँ आँख कहता है मैं पाँव का नहीं, इसलिए मैं काम नहीं करूँगा, इसलिए पाँव कहता है मैं आँख नहीं, इसलिए मैं इसके साथ नहीं रहूँगा। इस प्रकार से यहाँ पर 12 अध्याय का 15 पद से ये बात लिखा गया है। वाक्य पढ़ दीजिए तो। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या हुआ, इस कारण देह का नहीं। इस कारण देह का नहीं। यहाँ पर एक फंक्शन की बात किया गया है। हाँ, पाँव का अपना फंक्शन होता है, हाथ का अपना फंक्शन होता है, आँख का अपना फंक्शन, और क्या क्या फंक्शन वे लोग करते हैं वो हम जानते हैं, क्या क्या काम करते हैं। इसलिए प्रभु ने जो काम आज हमको अपने घर में दिया है, हमको गरार में प्रभु ने लाया है। अब गरार में आते हैं, हाँ हम लोग अब सिर होने का बाद, हाँ या कोई और बात इम्पोर्टेंट आज मेंबर्स बनने के बाद यदि हम करेंगे तो शुरू से क्या हो जाएगा, गड़बड़ी से। शुरू में ही प्रभु ये बात हमको बताना चाहते। आज शरीर में रहते हुए आज हमको ये बात मालूम करना है, प्रभु ने मुझको किस काम के लिए प्रभु ने मुझको चुना है, और वही काम करते हुए यदि हम जाएंगे तो प्रभु आज हमको क्या करते जाएगा, बढ़ाते हमको जाएगा। इसलिए दूसरी बात हमको मालूम होना चाहिए, प्रभु ने किस काम के लिए मुझको गरार मंडली में रखा है, किस काम के लिए प्रभु ने मुझको नासरत मंडली में रखा है, बर्निंग बुश मंडली, ये सब बात आज हमको क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। तभी आज बड़े मेल मिलाप के साथ एकता में होकर हम क्या कर सकेंगे, इसमें से भाग लेते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। तीसरी बात हमको मालूम होना चाहिए, ये बात है रिलेशन, संबंध। एक अंग का दूसरे अंग के साथ क्या संबंध होना चाहिए, क्या संबंध होना चाहिए, और ये संबंध के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। 12 अध्याय का 24-25 पद पढ़ दीजिए तो। फिर भी हमारे स्वभाव अच्छा 25 पद पढ़ दीजिए, हमको थोड़ा जल्दी करना है। ताकि देह में फूट न पड़े, देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बार बार चिंता करे, बार बार अंग एक दूसरे की बार बार चिंता, हमें फुट न पड़े, हाँ फुट न पड़े, देयर शुड बी नो स्कीजम बोल के यहाँ पर लिखा गया। हम क्या कर सकते पास, हमें विवाद नहीं होना चाहिए। हाँ एक मेंबर जो है वहाँ पर मंडली में, हाँ बेथेल मंडली में एक मेंबर के रूप में आपको रखा गया। सोलोमन है, हाँ सलोमी है, और कौन कौन है, हमारा भाई आरबी है, हाँ और कौन कौन यहाँ पर आए हैं, हाँ उन लोग को याद करना चाहिए। हाँ प्रभु ने मुझको किस जगह में रखा है, किस काम के लिए प्रभु ने मुझको रखा है, और एक दूसरे के साथ मेरा संबंध क्या है, ये बात भी आज हमको क्या होना चाहिए, मालूम होना। ठीक संबंध हमको रखना चाहिए, एक दूसरे के बारे में वास्ता हमको रखना चाहिए, किसका क्या बात की कमी है, किसकी क्या बात में आज को बढ़ती है, ये सब बात को जानते हुए मेल मिलाप के साथ शरीर कैसा रहना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया, हम पाते हैं 12 अध्याय का 13 अध्याय का 14 अध्याय का नहीं, इफिसी 4 अध्याय में इफिसी 4 अध्याय में देह को किस प्रकार से आज रहना है, यहाँ पर ये बात लिखा गया। हम क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। 4 अध्याय का 16 पर, 4 अध्याय का 16 पर, इससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता के द्वारा एक साथ मिलकर और एक एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार तो हर एक अंग के ठीक-ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है, प्रेम में उन्नति करते जाए। देह का उन्नति तभी होगा, बेथेल का उन्नति तभी होगा, गरार का उन्नति तभी होगा, गरार का बढ़ती तभी होगा, बर्निंग बुश का बढ़ती तभी होगा, जब लोग आज मेंबर्स की नाई, शरीर के अंग की नाई एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, मिलकर और घटकर बोल के वहां पर लिखा गया, फिटली जॉइन टुगेदर। खाली जोड़ना ही नहीं, इतना ही नहीं, ऐसे जोड़ होने से क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कोई क्या हो जाता है, निकल जाता है, लेकिन घटकर बोल के फिटली होने करने का मतलब क्या हो जाता है, वे लोग अब हिलता ही नहीं है, दोनों यदि एक हिलता है तो दूसरा भी हिलता है, ऐसे प्रकार से फिटली ज्वाइन। यदि फिटली ज्वाइन नहीं है, हाँ मिलता तो है, एक ही मंडली में है तो मिलना ही है, वहाँ पर रहना ही है, हाँ लेकिन फिटली फ्रेम नहीं है तो क्या होगा, एक मेंबर चलता है दूसरा मेंबर ऐसा खड़ा होता है, और ये चलेगा तो फिर ये ऐसा होगा। लेकिन गठकर जब बोला गया
तो दोनों मेंबर्स क्या करेंगे, एक साथ। झुकना है तो एक साथ झुकेंगे, हाँ, बढ़ना है तो एक साथ क्या करेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से एक देह को याद करते हुए, ये देह आज परमेश्वर का मंडली है, परमेश्वर का घर है, परमेश्वर ने इस घर को बनाया, इस घर में होकर आज हमको क्या करना है, मेज में से हमको भाग लेना है। तब हमको मिलकर गठकर आज हमको क्या करना है, इस प्रकार से प्रभु की भोज में आज हमको भाग लेना है। सबसे पहली बात, ये घर जो है जहाँ पर प्रभु ने मेज को स्थापना किया, गरार मंडली के प्रत्येक जन सदस्य जो है, कौन कौन है यहाँ पर गरार मंडली का हाथ उठा दीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और कहीं हो गया। इस प्रकार से अब आप लोग को क्या करना चाहिए, यदि मेज में से भाग लेना चाहिए। ये स्थापना आज हो रहा है, प्रभु ने ये बात को याद करते हुए उसको ने बताया। घर में प्रभु ने आज ये मेज को स्थापना किया है, इसमें आज प्रभु को हमको याद करना है। प्रभु कौन है, एक शरीर है, हाँ? जिस शरीर में आज प्रभु ने आज हमको रखा है, और इस प्रकार से हमको इसमें से आज मिलकर गठकर अपना जगह को मालूम करते हुए, अपना फंक्शन को मालूम करते हुए ठीक प्रकार से हमको रहना है। कहीं दूसरे की काम, दूसरे के आज जगह में आज जाकर ऐसा गड़बड़ मचाने वाला ऐसा काम नहीं लगेगा, हाँ? इसलिए आज मेज में भाग लेते हुए हमको ये बात का क्या करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। अब दूसरा बात, बिल्डिंग, कोई बात नहीं, आज मेज की स्थापना, इसलिए इसके लिए ज़्यादा समय देना पड़ेगा। दूसरे लोग कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे मुझको मालूम नहीं है, हाँ? दूसरी बात क्या, अपन बिल्डिंग के बारे में देखते। ये बिल्डिंग भी कैसा है, यहाँ पर आइए तो ईपीसी किताब 2 अध्याय का 21-22 पद में पढ़ लीजिए। सारी रचना एक साथ मिलकर पवित्र मंदिर बनते जाता है, आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान एक साथ बनाए। यहाँ पर बिल्डिंग की बात किया, और ये बिल्डिंग जो है, जो प्रभु का बिल्डिंग है, प्रभु का बिल्डिंग किस प्रकार से बनाया जाता है, हाँ? किस प्रकार से बनाया जाता है, आत्मिक घर किस प्रकार से बनाया जाता है, ब्रिक्स तो मनुष्य का बनाया हुआ है। उस समय में घर जो बनता था, कैसे बनता था, पत्थर से बनता था, पत्थर। इसलिए जीवित पत्थर के द्वारा बनाया गया आत्मिक मंदिर बोल के परमेश्वर की वचन पहला पत्र किताब 2 अध्याय का 5 पद में क्या किया गया है, लिखा है। और पत्थर किस प्रकार से बैठाया जाता है, मालूम है? घर में पहले क्या किया जाएगा, फाउंडेशन लगाया जाएगा। फाउंडेशन की बात में यहाँ पर लिखा गया है 20 पद में, एंड बिल्ट अपॉन द फाउंडेशन, हाँ? फाउंडेशन वहाँ पर बताया गया है, जग लगाया गया है। वो जग प्रभु यीशु मसीह है, और जग में प्रेरित और भविष्यवक्ता की शिक्षा के द्वारा वो जग वहाँ पर लगाया गया है। और उसके बाद उसमें क्या किया जाएगा, हाँ? पत्थर लगाया जाएगा, पत्थर लगाया जाएगा, एक मंडली वहाँ पर बन जाएगा। उसके ऊपर फिर दूसरा मंडली, तीसरा मंडली, हाँ? मंडली के लोग इस प्रकार से एक के ऊपर एक करते हुए क्या करते जाएगा, वहाँ पर बिल्डिंग, वहाँ पर मंडली बनते जा रहा है। जैसे इस मंडली के बारे में देखेंगे तो ये कहाँ से आया, हाँ? नासरत मंडली से आया भाई जी, नासरत से आया ना, गरार मंडली, हाँ? गरार मंडली नासरत के प्रभु के जनों ने, प्रभु के दासों ने सरसरा करके बातचीत करके, ये लोग बहुत दूर में है, ये लोग का अब सेवा वहीं पर करना है, बल्कि इस प्रकार से इजाज़त दिया, स्वतंत्रता दिया, और इसके बाद यहाँ पर गरार पर ये मंडली खड़ा हुआ, ऐसा है ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है नासरत का जो भी स्टोन्स है, नासरत का स्टोन्स कहाँ पर है, नीचे में है, और उसके ऊपर अब गरार का जो स्टोन्स वगैरह है जिसके द्वारा मंदिर बन रहा है, ये कहाँ पर है, ऊपर में है। ऊपर में बैठेगा तो क्या करेगा, हैं? गरार तो ऊपर में आ गया, तो पत्थर तो एक ये बात क्या बताता है, हैं? गरार मंडली जो है ये किस पर आधारित होना चाहिए, हैं? कहाँ पर आधारित होना चाहिए, नासरत के पत्थरों के ऊपर क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। कहीं गड़बड़ करेंगे, हैं? हमको नासरत नहीं चाहेगा, हमको नहीं चाहिए, अब हम लोग अपने आप हो गया है, हम हो गया बोल के नासरत का जो पत्थर है नीचे से निकाल दो तो क्या हो जाएगा, हैं? सब खत्म हो जाएगा, नीचे में गिर जाए। राजेश कहाँ है, राजेश को तो देखना चाहिए, मुझको तो आगे में ही देखना चाहिए और बताना चाहिए बहुत कुछ, हाँ? नहीं देखा तो समझना है ना, ये बात समझना चाहिए।
नासरत के ऊपर में यह बसाए गए हैं। आपके गरार के जो पत्थर है, गरार के पत्थर जिसके द्वारा ये मंदिर बन रहा है, नासरत के ऊपर में आप लोग आ गए। इसका मतलब नहीं है कि अब नासरत के ऊपर हम नाचेंगे, उठेंगे, क्या करेंगे बोल के नहीं है, नासरत के ऊपर अब हम प्रभुता जमाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन नासरत आपका क्या है? आधार है। आधार का मतलब जहाँ पर आप अपने पैर को क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, स्थिर रख सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? पूरा प्रकार से नासरत में निर्भर होना चाहिए। जो भी चाहो नासरत, जो भी चाहो नासरत। कोई सेवा करना है नासरत में जाकर, कोई आज क्या करना है नासरत में जाकर, नासरत के साथ इस प्रकार के संबंध में आप लोगों को क्या करना है? रहना है। ठीक है ना? कहीं नासरत को नहीं चाहिए बोल के बोलने से आप लोग भी क्या करेगा? नीचे जाए। नासरत का ढूंगा सब निकाल दो, आपको नहीं चाहिए बोलने से ऊपर का ढूंगा भी क्या हो जाएगा? नीचे में गिर जाएगा। और नासरत का लोग नीचे में रहता है तो क्या करेंगे? वे लोग क्या करेंगे? ऊपर का जो भार है उनको क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। नीचे में पड़ गया तो क्या करना है? ऊपर का जो भार नासरत के गरार के पत्थर को लेते हुए आप नासरत को क्या करना है? जीना है, उनको सहयोग देना है, सपोर्ट देना है। इस प्रकार का संबंध जो यहाँ पर फिटली फ्रेम टुगेदर का मतलब यही है। नासरत का पत्थर ऊपर से, गरार का पत्थर ऊपर में, नासरत का नीचे में, एक सट कर क्या करना चाहिए? रहना चाहिए। कहीं ये नीचे गिर गया तो खत्म हो गया। कहीं ये भार संभालने के लिए नासरत भी कोई न करेगा तो गरार मंडली क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। नासरत के ऊपर गरार मंडली का आधार है। इसलिए नासरत को क्या करना चाहिए? सपोर्ट देना चाहिए सभी बातों में। समझ गए ना? आपको ही नहीं, नासरत का जो भी आया है यहाँ पे सबको बता रहे हैं, लेकिन आप बता देंगे ना उनको। इसलिए ये बात, एक सपोर्ट देने वाला, दूसरा आज उसमें भर पड़ने वाला, डिपेंड करने वाला, डिपेंडेंट और सपोर्टर के रूप में अब नासरत और गरार क्या करेंगे? रहेंगे। ये बिल्डिंग का मतलब ये है। बिल्डिंग इस प्रकार से पत्थर आज लगाया जा रहा है। अभी तो नीचे में, सबसे नीचे में तो क्या पड़ा है? एल शदाई पड़ा है। एल शदाई तो कितना भार लेकर अभी तक रहा है। इसलिए अभी के समय में तो कौन कौन क्या भी कहता है? एल शदाई हमको नहीं चाहिए, एल शदाई नहीं चाहिए, तो एल शदाई से आया हुआ सब मंडली ऊपर में सब खत्म हो जाए। सोलोमन ऐसा बोल रहा है? नहीं। कितने मंडली आज ऐसे बोल रहे, हमको एल शदाई नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं होगा। एल शदाई तो आपका सबका भार लेकर, नासरत का भार भी, बर्निंग बुश का भार भी, इस प्रकार से लेकर, गरार का भार भी लेकर, अब इसलिए गरार को बोला, भाई ने बोला एल शदाई से आना पड़ेगा। कारण यही है। अब शुरू में ही नहीं, लेकिन अंत तक, जब तक ये बिल्डिंग पूरा बनावट न हो, जब तक ये बिल्डिंग पूरा बनकर आज प्रभु के घर में ये न चले जाए, तब तक आज हमको एक दूसरे में भर पड़ते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, सपोर्ट करने वाले हैं बोल के यहाँ पर लिखा गया। आइए तो पहला कोरिन्थी, दूसरा कोरिन्थी। इसलिए जो पुराना मंडली है, पुराना मंडली दूसरे मंडली के लिए आज क्या बनना है? सपोर्ट बनना है। और नया मंडली जो बन रहा है, वे लोग का आज डिपेंडेंट, वे लोग को आज क्या करना है? बनना है। कितना का? 20 पद में बात है, 2 का 20 पद में, 3 का 20 पद में। पहला कोरिन्थी, दूसरा कोरिन्थी, तीसरा कोरिन्थी, तीसरा कोरिन्थी नहीं है ना? पहला दूसरा कोरिन्थी 1 अध्याय का 24 पद, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 24। यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक है। क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। बाय फेथ ये स्टैंड। इसलिए विश्वास में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे पर भर पड़ते हुए आज हमको क्या करना है? जीना। ये बिल्डिंग की बात हम करते हैं और ब्राइड के बारे में बात है। ब्राइड जो है ये कैसा होना चाहिए? यहाँ पर पहला कोरिन्थी, दूसरा कोरिन्थी की किताब 11 अध्याय का 3 पर, ये आज हमारे कहाँ पर मैंने बोला? दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय का, अब मैं खत्म करूँगा, 11 अध्याय का 2 पद। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें
पवित्र कुंवारी के समान पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो। मसीह को, एक ब्राइड होने के कारण हमको क्या कैसा रहना है? पवित्र कुंवारी की नाय आज हमको रहना है। इसलिए 3 बातें हम यहाँ पर पाते हैं। एक घर में प्रभु ने ये मेज़ का स्थापना किया है, मेज़ में भाग लेते हुए आज ये 3 बातों को हमको याद करना है। हम एक मसीह का क्या है? शरीर है। मसीह का शरीर होने के कारण आज हमारे एक दूसरे के साथ का जो संबंध है, ये संबंध ठीक प्रकार से बनाए रखकर हमको इसमें से क्या करना चाहिए? भाग लेना चाहिए। दूसरी बात हम पाते हैं, एक बिल्डिंग की नाय है, इसलिए इसमें से लेते हुए हमको याद करना है, मसीह को याद करना है, मसीह के शरीर को याद करना है। मसीह का शरीर क्या है? एक बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग कैसा बनता है? एक दूसरे को सहयोग देते हुए, एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए, इस प्रकार से एक दूसरे पर भर पड़ते हुए आज हमको क्या करना है? रहना है। तभी आज हम क्या कर सकते हैं? इसमें से हम भाग ले सकते हैं। और तीसरी बात, ब्राइड के रूप में एक स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता का जीवन यापन करते हुए आज हमको इसमें से क्या करना है? भाग लेना। इसलिए प्रभु ने आज ये जो खाने का जो नियम वो उसने बताया है, कहाँ पर खाना है इसको? एक ही घर में इसको क्या करना है? खाना है। इसलिए एक घर में आज हमको रहना है। इसलिए प्रभु का मेज बाहर जाकर आज नहीं दिया जाता है। पहले समय में ऐसा होता था, कोई काम कर रहा है ऊपर में, वो लोग अपने काम में व्यस्त है, क्या करना है? कुर्सी जाकर मेज को ले जाकर ऊपर कहाँ पर ले जाकर। इसलिए शुरू में मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो भी आप बाहर में काम कर रहे हैं, आप मंडली का भाग है, आपको भी इसमें से भाग लेना है। इसलिए आप थोड़ा समय काम को बंद करके यहाँ अंदर में आप आ जाए, ताकि अंदर में ही हम आपको ये बांट सकें, ठीक है ना? बाहर में जो लोग हैं सुन रहे होंगे ये माइक के आवाज़ को, आप लोग मेज़ में भाग लेना चाहते हैं तो दया करके ये हॉल के पिछले भाग में आकर आप रहिए, ताकि हम आपको भी ये मेज़ आज हम पहुंचा सकें। हम प्रभु हमको सहायता करें। इस प्रकार से प्रभु ने आज ये पासोवर, ये जो आज निस्तार चाड का जो पर्व है, ये पर्व को मनाते हुए उसने आज मेज़ का स्थापना किया है। इसीलिए अभी एक समय में भी ऐसी ही बात हम पाते हैं। प्रभु की भोज में आज प्रभु एक मेमना की नाई आज हमारे बीच में रहा है। इस मेमना को याद करते हैं। ये मेमना कौन है? एक शरीर है। ये मेमना कौन है? एक बिल्डिंग है। ये मेमना कौन है? एक ब्राइड है। इस बात को याद करते हुए, और जिस प्रकार से आज बॉडी में सब लोग एक साथ गठकर मिलकर आज रहते हैं, बिल्डिंग में भी इस प्रकार से एक दूसरे के सपोर्ट में एक दूसरे को डिपेंड करते हुए रहते हैं, और इसी प्रकार से ब्राइड के रूप में आज पवित्रता का जीवन यापन करते हैं। हम इसमें से क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए प्रभु आपको निमंत्रण कर रहा है, आओ मेरे मेज में से क्या करो? भाग लो। इसमें भाग लेने जा रहे। प्रार्थना करके हम इसको बांटेंगे, और ये सेवा को इस प्रकार से हम आज से शुरू करेंगे। जो भी भाग लेना चाहेंगे आप नज़दीक में रहिए, और मेज़ में प्रभु के लोगों के पास पहुंचाने के लिए हमारे भाई आमोस बरसरा से, हमारे भाई